Hello students, today we will discuss about the next combination in a point groups, that is R1 R2. R1 R2, it means this is a point group which include the combination of the two rotation axes. The point group that exist in this category are 2 2 2, 3 2, 4 2 2, 6 2 2, 2 3, and 4 3 2. These are the various combinations which exist in the category R1 R2. R1 R2 means there are two rotation axes which work simultaneously. The first rotation axis act as the principal rotation axis which pass through the center of substance, through which a substance can be rotated at a given throw for the for the given point group. And second rotation axis, the second rotation axis is work perpendicularly on the principal axis of rotation. After applying the work of operation of these two rotation axes, in some cases a new rotation axis is generated which is written at the third position as given in example 2 2 2. Here principal axis of rotation which pass from the center of substance is twofold, and another twofold axis of rotation which is written at number 2 is perpendicular to the principal axis of rotation. When these two rotation axes apply simultaneously, and after the application of these two, a new new rotation axis, that is twofold, exists in perpendicular to these twofold principal axis of rotation and a rotation axis which is perpendicular to it. It means that all the three twofold rotation axes are mutually perpendicular to each other. In same way, 3 2, the principal axis the rotation axis which is written at the first position is the principal axis of rotation, that is threefold principal axis of rotation which pass through the center of substance. And axis of rotation written at second number is the rotation axis which pass perpendicular to the principal axis of rotation. When we apply these two rotation axes simultaneously, there is no generation of the new twofold axis. So this point group is written only as 3 2. Now one by one we explain all these point group by drawing in a circle form. Let us start. First of all, we start with point group 2 2 2. For this, again we draw a circle. Okay. We have draw this circle. A principal axis of rotation is twofold. To show this, we draw ellipse at the center of circle and a twofold principal axis of rotation which is perpendicular to this twofold axis of rotation. This is this. First of all, first operation क्या होगा कि this is our object. Through principal axis of rotation, this is the twofold principal axis of rotation. First of all, we rotate the object at an angle 180 degree through this principal axis of rotation. So after rotating at 180 degree, object will placed here, यहाँ पे होगा, and then
we rotate this object through the another two-fold principle of axis of rotation, another two-fold axis of rotation which is perpendicular to the principal axis of rotation, that is this। ये जो हमने लाइन पास की है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि दिस ऑब्जेक्ट when rotated through this axis of rotation which is perpendicular to the principal axis, after rotation this will come here, and again to differentiate these two operations we use a symbol +2 plus dash, or you can draw circle also। Now what I have said, I said if we rotate this object at angle 180 degree through the principal axis of rotation, now object is placed here, now rotate this object through the another two-fold axis of rotation, this is the two-fold axis of rotation जो हमने वर्टिकल लगाई है, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप 180 का रोटेशन करोगे तो यहाँ से रोटेट हो गए ये इस एक्सिस के थ्रू आपने, सॉरी 1 सेकेंड, तो ये हमने लगाई दिस इज़ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस रोटेशन, तो दिस इज़ द रोटेशन एक्सिस। अब हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करके हमें सपोज यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगेन वी गिव्स द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। अब हम फिर इसको रोटेशन देंगे 180 की, तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करके हमारे पास यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अराइव करेगा। और फिर ये जो हमारे पास टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि अपने वर्टिकल में दिखाई है, इसके थ्रू आप 180 का रोटेशन दोगे, बिकॉज दिस इज़ आल्सो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ इसके थ्रू हमने रोटेशन दिया है। तो जब आप इसको रोटेशन दोगे तो अगेन टू शो द रोटेशन ऑपरेशन ये सर्कल जो है वो प्लस की फॉर्म में यहाँ पे आपको फिर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व नाउ, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास देखो ये प्लस है और ये यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी ये प्लस है और ये हमारे पास सर्कल और प्लस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि शायद ये जो वर्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है टू फोल्ड, इसके परपेंडिकुलर भी हमारे पास एक ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नई जनरेट हुई है या एग्जिस्ट करती है, जिसके थ्रू अगर हम सब्सटेंस को रोटेट करेंगे तो हमारे पास 180 का अगर रोटेट करें तो ये प्लस से सर्कल हो जाएगा, और फिर रोटेट करेंगे तो वो हमारे पास सर्कल से प्लस में जाएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट ग्रुप 2 2 2 कि जब हम दो रोटेशन एक्सिस का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक नई टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जनरेट हुई है जो हमारे पास ये वाली है। तो हम इसको कैसे, एक तो सेंटर से पास करिए, दैट इज़ फर्स्ट, जो ये वर्टिकल हमने लाइन लगाई है दैट इज़ द सेकेंड रोटेशन एक्सिस, और जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में एग्जिस्ट कर रही है दिस इज़ द थर्ड रोटेशन एक्सिस दैट इज़ टू फोल्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट ग्रुप 2 2 2। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट ग्रुप 3 2। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप इज़ 3 2। अब 3 2 में हम क्या बोल रहे हैं, 3 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या है, दैट इज़ द थ्री फोल्ड। थ्री फोल्ड मीन्स वी हैव टू रोटेट थ्रू 120 डिग्री and a two-fold axis of rotation which act perpendicularly to the three-fold axis of rotation। क्लियर। तो उसके बाद जब हम 120 का रोटेशन देंगे, ऑब्जेक्ट जहाँ भी जाएगा वहाँ से आपने टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू उसको रोटेट करना है एट 180 डिग्री, देन ऑपरेशन विल बी कंप्लीटेड। तो अगेन वी ड्रॉ ए सर्कल, दिस इज़ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करने के लिए हम सेंटर पे बनाएंगे ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो अब हम क्या बोलते हैं कि मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब मैं इसको 120 का रोटेशन दे रही हूँ थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आफ्टर रोटेशन दिस ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड हेयर, यहाँ पे आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास एक 2 फोल्ड एक्सिस जनरेट कर रही है, एग्जिस्ट करती है। तो ये सपोज हमारे पास दिस इज़ द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जब आप इसको रोटेट करोगे, अब यहाँ से इसको ये मैंने रोटेशन का सिंबल लगा दिया अब आपके समझने के लिए। तो इसके थ्रू मैं इसको रोटेट करूँगी तो प्लस जो है वो सर्कल की फॉर्म में 180 की रोटेशन पे यहाँ है। ठीक है, अगेन रोटेट द ऑब्जेक्ट थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स अब सर्कल को फिर आप रोटेट करो 120 के एंगल पे। तो सर्कल रोटेट करके यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ पे। अब सर्कल यहाँ पे है, तो जो 2 फोल्ड एक्सिस है परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दैट इज द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके थ्रू आप फिर 180 का रोटेट करो। तो जब सब्सटेंस को आप 180 के एंगल पे इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करोगे तो ये सर्कल से फिर प्लस की फॉर्म में यहाँ आ रहा है। अगेन सेम ऑपरेशन, रोटेट द सब्सटेंस थ्रू 120 डिग्री बाय प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपने इसको रोटेट करके फिर यहाँ ले आए प्लस की फॉर्म में। और ये जो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके थ्रू अब इसको 180 का रोटेशन दो। तो ये यहाँ से रोटेट करके ये आ गया सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे। देन ऑपरेशन इज़ कंप्लीट। अब आप देखो कि क्या कोई नई एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट की है। तो देयर इज़ नो न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ जनरेटेड। क्यों? अगर आप यहाँ देखो कि दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ सर्कल, तो आफ्टर द रोटेशन थ्रू दिस एक्सिस प्लस से सर्कल जनरेट हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ देखें प्लस से सर्कल, तो इस एक्सिस इसकी रोटेशन के थ्रू ये जनरेट हो रहा है प्लस से सर्कल। और अगर हम यहाँ देखें प्लस से सर्कल मीन्स 180 का रोटेशन तो है लेकिन वो इसकी है। और ये एक्सिस कौन सी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने उन्हीं को एक्सटेंड किया। तो नई एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे जनरेट नहीं हुई, ये वही प्री एग्जिस्टिंग एक्सिस ऑफ रोटेशंस हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो सो दिस पॉइंट ग्रुप इज़ नेवर सेज 3 2 2, दिस इज़ ओनली 3 2। ठीक है, थर्ड प्लेस पे हमारे पास कोई नई एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट नहीं की है। नो न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जनरेटेड इन केस ऑफ 3 2। Now we will discuss about 4 2 2, 4 2 2। 4 2 2 में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास 4 फोल्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ सब्सटेंस। ए 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट परपेंडिकुलरली टू द 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन सेम वे यू कैन ड्रॉ दिस। आपने सर्कल ड्रॉ किया, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करने के लिए हमने सेंटर पे बनाया है डायमंड। और ये हम दिखा दें कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। इन केस ऑफ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन we gives the rotation to the substance at an angle of 90 degree. If object is here, then rotate to the principal axis of rotation and we will come at this situation. Now this is the 2 fold axis of rotation perpendicular to the 4 fold. इसके थ्रू आप 180 का रोटेशन दो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लस से यहाँ सर्कल की फॉर्म में आ रहा है। अगेन रोटेट द सब्सटेंस थ्रू 90 डिग्री, तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू आप इसको रोटेट करोगे, जब यहीं से इस तरह से घूम जाएगा ये, तो फिर प्लस से सर्कल से प्लस की फॉर्म में यहाँ से फिर आप इसको रोटेट करो
रोटेट करके आपका ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे प्लस, और इस प्रिंसिपल ये जो हमारे पास सेकंड रोटेशन एक्सिस है टू फोल्ड, उसके थ्रू आप 180 का रोटेट करोगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में। अगेन रोटेट दिस सब्सटेंस at 90 degree and we will reach at this point. This is circle, or then rotate to the two-fold axis of rotation and we will get plus. ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो कुछ नया जनरेट हुआ है, तो देखो ये यहाँ पे ये प्लस से सर्कल हुआ है, फिर ये प्लस से सर्कल है, ये हमारे पास अगेन प्लस से सर्कल है, और यहाँ पे प्लस से सर्कल। इसका मतलब क्या है कि प्लस से सर्कल कब हुआ, जब हमारे पास टू फोल्ड का रोटेशन होता है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में एक टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो न्यू जनरेट हुई है। इन सेम वे यहाँ से प्लस से सर्कल और ये प्लस से सर्कल, तो इन दोनों के बीच में भी हमारे पास एक नई टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरेट हुई है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन थी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अब हमारे पास एक नई टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एट एन एंगल 45 टू द प्री एग्जिस्टिंग टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो यहाँ पे जो पहले से हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सॉरी टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ जो नई हमारे पास टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 45 एंगल बना रही है, एंगल ऑफ 45। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नई टू फोल्ड एक्सिस रोटेशन एग्जिस्ट कर रही है उसका पहले वाली जो हमारे पास रोटेशन एक्सिस है उसके साथ जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। तो हमें ये एंगल्स भी फाइंड आउट करने आने चाहिए कि हमारे पास जो नई एग्जिस्ट करती हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितने एंगल पे हैं हमारे पास पहले वाली जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके साथ क्या एंगल वो बनाती हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब पहले हम बात करेंगे अभी 622 के बारे में। ठीक है, 622 क्या है हमारे पास, इसको क्लियर करते हैं। 622, तो इन सेम वे 622 आप ड्रॉ भी कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, और हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, वो 6 फोल्ड है। तो 6 फोल्ड को शो करने के लिए हम सेंटर पे यहाँ हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ हेक्सागन, और ये हमने दिखा दिया रोटेशन एक्सिस सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमने क्या बोला है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आप 60 का रोटेशन दोगे तो 60 का रोटेशन देने, अब ये आप समझ चुके हो कैसे देना है हमने। ठीक है, तो मैं बार बार वो एरोज नहीं लगाऊंगी, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। रोटेट करके प्लस से यहाँ आए, अब ये हमारे पास टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके थ्रू आप इसको 180 का रोटेट करो तो यहाँ होगा ऑब्जेक्ट। फिर आप इस सर्कल को 60 का रोटेशन दोगे तो हमारे पास ये यहाँ होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करोगे तो ये प्लस की फॉर्म में। अगेन यहाँ से लेके जाओगे इसको यहाँ पे तो ये रोटेशन के थ्रू यहाँ पे आऊगा, और फिर जब सर्कल को रोटेट करके यहाँ पे लाओगे और आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन इट विल कम हेयर। अगेन प्लस को 60 की रोटेशन दी तो ये यहाँ पे है, और 180 की रोटेशन थ्रू टू फोल्ड एक्सिस रोटेशन इट विल कम हेयर, एंड अगेन सेम 60 की रोटेशन यहाँ, और ये टू फोल्ड एक्सिस रोटेशन। अब यहाँ पे देखो कुछ नया एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो प्लस से सर्कल हुआ है यहाँ, इट मीन्स कि एक टू फोल्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ भी प्लस से सर्कल हुआ है तो एक टू फोल्ड हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज़ टू फोल्ड, और एक हमारे पास देखो यहाँ प्लस से सर्कल, ये भी सर्कल से प्लस, तो एक टू फोल्ड इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास न्यू टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्री एग्जिस्टिंग टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो ये है, इसके साथ एक नई आपने दिखाई, तो इनके बीच का जो एंगल ये क्या है, इन बिटवीन दीज टू,
तो ये हमारे पास है 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री के एंगल पे हमारे पास एक नई 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो एंगल हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनके लिए हमारे पास एक जनरल रूल है, तो वो जनरल रूल हम डिस्कस करेंगे अब। तो जनरल रूल क्या है कि इफ़ वी कंबाइन 2 रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल C, a third rotation axis having the throw gamma is generated, which make angle A with the rotation axis having throw beta and angle B with rotation axis having throw gamma. So these angles are given by the following formula. अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा इसके लिए, देखो तो फार्मूला हमारे पास है cos C cos C is equal to cos alpha by 2 cos beta by 2 plus cos gamma by 2 divide by sin alpha by 2 sin beta by 2। ठीक है, इन सेम वे वी कैन राइट cos B is equal to cos alpha by 2 cos gamma by 2 plus cos beta by 2 divide by sin alpha by 2 and sin gamma by 2। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं cos A की। तो cos A क्या होगा, cos A is equal to cos beta by 2 cos gamma by 2 plus cos alpha by 2 divide by sin beta by 2 and sin gamma by 2। In this formula we have used the symbol alpha, beta, gamma and A, B, C and what are these angles। हमने एक वर्ड यूज़ किया अपनी स्टेटमेंट में। आई कैन अगेन रिपीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारी देखो क्या है जनरल रूल के लिए कि इफ़ वी कंबाइन 2 रोटेशन एक्सिस, कि अगर हमारे पास 2 रोटेशन एक्सिस हैं हैविंग थ्रो अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देखो हैविंग थ्रो अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल C, इट मीन्स थ्रो क्या होते हैं, थ्रो का मतलब है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन का खुद का एंगल है जिस पे हम रोटेशन दे रहे हैं उसको हम थ्रो बोलते हैं। जैसे आपने बोला ना कि 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसकी रोटेशन कितनी होती है 120, तो 120 इज़ द थ्रो फॉर द 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह अगर हम 4 फोल्ड की बात करते हैं तो 4 फोल्ड में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ थ्रो है वो कितने का है 90 डिग्री का, कि जिसके थ्रू हम उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला है कि 2 रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल C। अब आपने 2 रोटेशन एक्सिस का ऑपरेशन अप्लाई किया है तो वो 2 रोटेशन एक्सिस आपस में कितने एंगल पे, जैसे मैंने बोला 2 2 2 में 2 फोल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी 2 फोल्ड है, तो वो आपस में 90 के एंगल पे वर्क कर रही हैं। तो जो एंगल 90 है वो हमारे पास C है यहाँ पे। ठीक है, ए थर्ड रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो गामा इज जनरेटेड, जैसे उसमें 2 2 2 में तीसरी 2 फोल्ड जनरेट हुई है। ठीक है, और उसका भी थ्रो है गामा, तीसरी का थ्रो हमारे पास है गामा जो कि उस वहाँ भी हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, जनरेटेड विच मेक्स एंगल A। अब जो नई एक्सिस जनरेट हुई है, ठीक है, जो हमारे पास नई एक्सिस जनरेट हुई है वो हमारे पास जो एंगल बना रही है पहले वाली एग्जिस्टिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, वो हमारे पास एंगल A और B है। ठीक है, विच मेक्स एंगल A विद रोटेशन एक्सिस
हैविंग थ्रो बीटा एंड एंगल बी विद रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो गामा। कि जो हमारे पास एंगल ए किसको बोल रहे हैं, एंगल ए हम किसको बोल रहे हैं, एंगल ए जो है वो कौन सा एंगल है, जो नए वाली हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट हुई है जिसका थ्रो गामा है, ठीक है, वो हमारे पास बीटा थ्रो वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो एंगल बनाएगी वो ए है। देखो गामा और बीटा के बीच में एंगल ए, ठीक है, एंड एंगल बी विद रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास देखो, अल्फ़ा बीटा गामा हमने क्या बोल दिया कि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल ऑफ थ्रो ऑफ द रोटेशन एक्सिस, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके अपने खुद के रोटेशन एंगल क्या हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा है। और ए बी सी क्या हैं, जो नए वाली हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो नई एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करेगी उसका प्री एग्जिस्टिंग रोटेशन एक्सिस के साथ क्या एंगल है वो हमारे पास ए बी सी है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो ये सब पता है, और किसी भी जैसे आपने 2 वाले का बताया है, 2 का आपने केस डिस्कस किया, उसके लिए आप ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास फार्मूलाज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप जैसे वैल्यू डाल दो। अब 2 आपने कहा, 2 का क्या मतलब है हमारे पास कि सारी की सारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 2 फोल्ड है, और उन सब का एंगल ऑफ थ्रो जो है वो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा उनके सबके अपने 180 डिग्री हैं, ठीक है। तो अब हमें सारे एंगल ये पता है, तो आप यहाँ पे कोस ए कोस बी कोस सी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये अभी लिखा ही हुआ है फार्मूला, तो इसी में हम वैल्यू डाल लेते हैं, कोस ए निकाल लेते हैं इसके लिए। तो ये देखो हमारे पास अभी तो कॉस ए क्या हो जाएगा फिर, कोस ए इज इक्वल टू कॉस बीटा बाई 2, बीटा कितना है 180, इट मीन्स कॉस 90 हो गया, कॉस अगेन 90 प्लस कॉस 90 डिवाइड बाय साइन 90 और फिर साइन 90, क्लियर। अब ये हुआ है हमारे पास, तो cos 90 ज़ीरो, इट मीन्स cos ए हमारे पास क्या हो गया, तो cos ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। cos ए ज़ीरो कब होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये सारे 90 90 90 अल्फ़ा बीटा गामा ऑल आर 90, तो उस केस में हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी एग्जिस्ट करेगी, साइन 91 ये सारे ज़ीरो है, समझ आ रही बात। तो ए यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ए हमारे पास यहाँ पे कॉज ए, ये हमारे पास 90 डिग्री, कॉज ए ज़ीरो कब होगा, जब एंगल 90 होता है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। इन सेम वे आप बी भी निकाल सकते हो, सी भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे सारे 90 ही आएंगे कि जो हमारे पास नई एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके एंगल नई पहले वाली रोटेशन एक्सिस के साथ हमारे पास 90 डिग्री के। ये आप किसी और का भी फाइंड आउट कर सकते, जैसे 2 वाली की आपने बात की है, अब आपने क्या बात की है, जैसे हमारे पास ये है 4 2 2, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, अब देखो तो आप कोस ए ही निकाल दो, सपोज कोस ए क्या होगा हमारे पास, अब कोस ए में कोस बीटा बाई 2 कोस गामा बाई 2 प्लस फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोस बीटा बाई 2 कोस गामा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 साइन गामा बाई 2। अब सारे एंगल आपको पता है, कॉस बीटा, अब अल्फ़ा बीटा गामा आपने क्या बोला कि हमारे पास 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिनके अपने एंगल ऑफ थ्रो अल्फ़ा बीटा, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए एंगल अल्फ़ा और सेकंड जो है हमारे पास बीटा, ठीक है, कोस अल्फ़ा एंड बीटा। जो थर्ड जनरेट हो रही है वो हमारे पास गामा। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हमारे पास ये तो अल्फ़ा, इसको हम अब नाम दे सकते हैं अल्फ़ा, ये बीटा और ये हमारे पास गामा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, कॉस बीटा कितनी है, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 180 मीन्स कॉस 90
गामा हमारे पास वो भी 180 का है, तो कोस 90 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2। कोस अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, 4 फोल्ड एक्सिस रोटेशन के लिए एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो कोस 45। ठीक है, इन सेम वे यहाँ पे साइन बीटा बाय 2 मीन्स साइन 90 और यहाँ साइन 45। तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये कोस 90 वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप इरेज़र मैंने यहाँ रखी है, उसकी हेल्प से आप सारे एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें कोस ए इज इक्वल टू कोस 45 कितना होगा 1/2 डिवाइड बाय साइन 45 भी 1/2 होगा। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 1, कोस ए 1, और कोस ए 1 कब होता है, जब ए की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसी तरह से आप इसमें बी की वैल्यू निकाल दो, सी की वैल्यू निकाल दो, तो डिफरेंट केसेस में आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, अब कोस सी की वैल्यू अगर निकालनी है, अब यहाँ पे ए कितना है हमारे पास, जो ए है क्या हमारे पास, देखो ये आपने क्या डिफाइन किया है कि दिस इज़ द a third rotation axis having throw is generated which makes angle A with the rotation axis having throw B बीटा। ठीक है, तो उसके साथ ये उसी हम क्या बोल रहे हैं कि जो A एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास किसके पास, रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो गामा is generated which make angle with rotation axis having throw beta। जो सेकंड वाली रोटेशन एक्सिस है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ, एंड एंगल बी विद रोटेशन एक्सिस हैविंग थ्रो गम। इसी तरह से आप कोस सी और कोस बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, so this is the formula, this is all about this point group. In next lecture we will discuss a new point groups.